students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So, let's start students today's lecture. Now, our first sum is example number 12. The address is example number 12. Good. So, firstly, I read the question. The question is, let capital N be the set of natural numbers. We have given a one set which is a natural numbers. Define a real valued function f from n to n by fx is equals to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. That means, students, we have to use this function. We have to use this function for complete the table given below. That means we have given this table. You can see that we have given a one table in which we have given the values of x, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Students, what we do now? We have to do just we put the values of x one by one. Firstly, we put a value of x is equals to 1 in our function. Then we get whatever we get, the answer we write. Then we put the value of x is equal to 2. What we get, we write. Similarly, put 3, 4, 5 and 7. Okay, students? It means if we put the value of x in our function, then we get the value of y. Okay, students? So we have to find the value of y because we have given the value of x in our table. Students, आपको एक टेबल दिया है क्वेश्चन में, ओके, और उसमें आपको x की वैल्यू दी है, बराबर, उसमें मेंशन की है, और हमें जो x की वैल्यू है वो हमें हमारे फंक्शन में पुट करके जो भी आंसर आता है आउटपुट वो हमें यहाँ लिखना है. देखो, f(1) की जगह पे जो आता है वो लिखना है, सिमिलर टू 3, 4, 5 और 7 के लिए. ओके, चलो सुनो, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ये टेबल इंक्लूड टेबल, द होल इज क्वेश्चन. ओके, इन आंसर you have to mention, firstly you have to mention as we do in a previous sums, we have to mention the given function. How? Answer here f from n to n where fx is equal to 2x plus 1 be a given function. इस तरह आपको एक मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको आंसर में क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया है वो आपको मेंशन करना है सॉल्यूशन में, आंसर में. हियर कैसे मेंशन करना है कि हियर f from n to n where fx is equal to 2x plus 1 be a given function. जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था सेम एज यहाँ करना है. उसके बाद ये जो टेबल हमारे क्वेश्चन में जो टेबल है ना, वो फिर से आपको आंसर में ड्रॉ करना है, सेम, बराबर है. चलो, ड्रॉ करने के बाद हमें सिर्फ आंसर ही लिखना है. कैसे लिखना है? अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आपके fx में, मतलब यहाँ 1 आएगा, इसका मतलब 2 into 1 दैट मीन्स 2, और प्लस 1 इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? बोलो स्टूडेंट्स, क्या आएगा फाइनल आंसर? यस, वेरी गुड, वी गेट 3. सिमिलरली इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, देन वी गेट 2 into 2 दैट मीन्स 4 plus 1 is equals to 5. Similarly, if we put 3, then we get 3 to the 6 plus 1 that means 7. Similarly, 9, 11, 13 and 15. Okay students, so here we complete the table which we have given in our question. Okay, now move to our next example. The address is exercise 2.3 fifth sum. Okay students, firstly I read the question. Please all you listen. Find the range of each of the following functions. It means we have given some functions. Okay students, इसका मतलब कि हमें कुछ फंक्शन हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, बराबर है. उसका हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है. इसका मतलब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है.
चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x वेर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो क्वेश्चन है उसमें हमें डोमेन की वैल्यू दी है, जो डोमेन की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है। क्या किया है, तो x क्या है हमारा, तो डोमेन है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे? तो आपको फंक्शंस की डेफिनेशन तो पता ही होगा कि f इज इक्वल्स टू जो पेयर्स मिलते हैं हमें x, y मिलते हैं, और उसमें जो x जो फर्स्ट प्लेस पे होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन होता है, और जो सेकंड प्लेस पे जो y होता है वो क्या होता है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स हमारे पास x, इसका मतलब डोमेन हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं आंसर में, हियर fx is equals to 2 minus 3x where x belongs to r and x greater than 0 be given। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमें fx दिया उसको मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूं, क्योंकि इसका यूज आगे जाके आएगा। ओके कैसे आएगा वो आपको अभी थोड़े समय बाद पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद नाउ फॉर finding the range of f we take y is equals to fx। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन में जो आस्क किया है, we have to ask a question that we have to find the range of f। okay, so उसको मैंने मेंशन कर दिया कि now for finding the range of f, मतलब जो हमें range of f फाइंड करना है। ओके उसके लिए मैंने क्या किया, तो we take, तो हमने क्या ले लिया, तो y is equal to fx मैंने ले लिया। that implies y is equal to fx की वैल्यू अभी आपने देखा होगा कहाँ है, तो जो मैंने अभी रिजल्ट नंबर 1 दिया है वो क्या है, तो 2 माइनस 3x। अब ये जो वैल्यू है वो y इज इक्वल टू है, मतलब y की वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, सीधा कन्वर्ट कर देंगे x में। इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले y वहां ले लेते हैं और 3x इधर, तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y। दैट मीन्स वी गेट x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ x। अभी स्टूडेंट्स जो हमने ऑन टू फंक्शन में किया है ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो हमने मतलब जो हमारा जो फंक्शन अभी वो तो हमारा 12 में आएगा, बराबर, वो तो हमारा 12 में टॉपिक है, ऑन टू फंक्शन है। जो इसके यूज से इस सिमिलर ऐसे ही हमें फाइंड करना है, बराबर, वो ऑन टू आपको 12 में आएगा, 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। चलो यहाँ इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। क्या किया, सबसे पहले हमने मेंशन किया जो हमारा फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया था वो, उसके बाद फाइंडिंग द रेंज ऑफ एफ वी टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस की और जो वैल्यू उसको मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। चलो उसके बाद नाउ स्टूडेंट्स लेट मी क्लियर, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। ओके मतलब हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देयरफॉर नाउ फॉर ऑल x where x belongs to r and x greater than 0, मैंने क्या ले लिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो मैंने यहाँ ले लिया। क्या लिया था, तो डोमेन जो दिया है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे जो x ग्रेटर देन 0 उसको मैं फिर से लिख देता हूँ, दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 0। अभी x के लिए हमने अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया, ओके 2 माइनस वाई बाई 3 विच इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। क्या किया मैंने, जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा डोमेन दिया है उसको मैंने यूज किया और स्टार्ट कहाँ से लिया, जो x ग्रेटर देन 0 दिया है उससे स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें डोमेन देती है, जो हमें डोमेन दिया होता है क्वेश्चन में उसका ही हम यूज करते हैं। तो इधर से हम ऐसा ही कर रहे हैं, उसका ही यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया, x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि जो x की जो लिमिटेशन है वो कहाँ से है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो x की वैल्यूज है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है, 0 से ज्यादा, इसका मतलब सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो वहां से मैंने स्टार्ट ले लिया तो उसकी वैल्यू ये आ गई। ओके अभी हम y में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज, चलो
स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको हम y में कन्वर्ट करेंगे, बराबर, क्योंकि जो ऐसा स्ट्रक्चर है सेम एज ऐसा स्ट्रक्चर हम अभी लाएंगे, पर क्या लाएंगे, ये x है उसकी जगह पे y लाएंगे, बराबर। तो वो हमारा टारगेट है। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड। तो आपको कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब वी गेट, हम क्या, that implies 2 minus y which is greater than 0। ओके, समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या करता हूं, तो प्लस y ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, प्लस y कर देता हूँ, मतलब y ऐड कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ प्लस y आएगा, y प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस y, मतलब ये प्लस y और ये माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, तो 2 लेस देन y मिलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, 0 प्लस y दैट मीन्स y। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, मतलब रिवर्स कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, y लेस देन 2 मिलेगा। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, ऐसा था ना तो मैंने ऐसा कर दिया, मतलब रोटेट टाइप कर दिया मैंने, तब। तो अभी आप क्या देख सकते हैं आपको, तो जो y की जो वैल्यू है, मतलब जो हमारा रेंज की जो वैल्यू है वो कौन सी आएगी, तो 2 से सभी लेस नंबर आएंगे, मतलब लेस नंबर मतलब नेगेटिव साइड जाएंगी हमारी, बराबर। हमारा जो रेंज की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, तो नेगेटिव साइड जाएंगी। तो इसको मैं इंटरवल के रूप में कैसे लिखता हूँ, देयरफॉर y बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी कॉमा टू ओपन। क्यों ओपन लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन है, सिर्फ लेस देन है, लेस और इक्वल टू नहीं है इसका, इसलिए हम यहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। समझ में आ गया, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में ये सब आ गया होगा। चलो, तो y बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 आ गया। समझ में आ गया कैसे आ गया, ये आपका सॉल्यूशन है, बराबर। चलो अभी फाइनल आंसर लिखना है हमें, देयरफॉर द रेंज ऑफ f is equals to, we know the definition of f, symbolically we may write rf, और is equals to हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन we may write y where x comma y belongs to f equals to y where y less than 2, y belongs to r, that equals to y belongs to, क्या लिख सकते हैं हम, ओपन माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। ये हो गया आपका कौन सा आंसर, तो के रेंज ऑफ, जो हमें एफ क्वेश्चन में पूछा है वो, विच वी हैव आस्क्ड इन अ क्वेश्चन एंड वी फाइंड इट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा। फिर एक बार हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, फॉर फाइंडिंग और सिर्फ फाइंड रखते हैं, फॉर फाइंड द वैल्यू, फॉर फाइंड द रेंज ऑफ एफ वी टेक, मतलब हमें जो रेंज ऑफ एफ फाइंड करनी है उसके लिए मैंने क्या ले लिया, तो फॉर वी टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ और सीधा जो हमारा फंक्शन उसको मैं x में कन्वर्ट कर देता हूँ, बराबर है। तो x में कन्वर्ट किया, वो भी आपको कैलकुलेशन जो हमने या स्टेप्स के वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, नाउ जो हमें क्वेश्चन में जो हमें डोमेन की जो लिमिटेशंस दी है, बराबर, जो हमें डोमेन दिया उसका मैंने यूज किया, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ये आपको एफ दिया है, बराबर। तो एक्स की वैल्यू हमें दी है, एक्स की वैल्यू मतलब हमारे डोमेन की जो वैल्यू हमें दी है, वो डोमेन की वैल्यू आप अपने फंक्शन में मूकेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वाई की मिलेगी, बराबर ना। तो आप वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं, तो डोमेन की पुट कर रहे हैं, बराबर ना। तो आपको जो रेंज मिल रहा है वो किसकी मदद से मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ अवर डोमेन्स एलिमेंट्स। दैट मीन्स जो हमें एक्स मिला है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, उसका ही हम यूज कर रहे हैं, बराबर, उसके यूज। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करके फिर तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। तो हम डोमेन का यूज करके हमने हमारा रेंज फाइंड कर लिया और उसको इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है उसके द्वारा, उसके थ्रू हमने फाइनल आंसर हमारा लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपका समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड। अच्छा, मूव टू आवर
Next one, second one. The question is fx is equal to x square plus 2 where x belongs to R. That means we have given a function and our domain which is belongs to our the set of real numbers, whole real number. Okay students, अभी previous example हमने क्या देखा? In the previous example we seen that the domain of f which we have given positive real numbers, that means x greater than 0, or in other word I say R plus, x belongs to R plus. यहाँ पे हमें होल R दिया, मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स होल. चलो सबसे पहले जो हम करते हैं ऐसा ही हमारा प्रोसेस, हियर fx is equals to x square plus 2 where x belongs to R be given, and I give it result number 1. Okay, now for find the range of f, we take y is equals to fx. That implies y is equals to x square plus 2. समझ में आएगा स्टूडेंट्स? तो इस रिजल्ट को मैं ऐसे ही दे देता हूँ और इसको रिजल्ट नंबर 2 कह देता हूँ, और बाय 1 कहाँ से आई हमारी वैल्यू? तो रिजल्ट नंबर 1 से आया. चलो अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, हमें जो रेंज फाइंड करें उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? तो हमारा जो डोमेन हमें क्वेश्चन में दिया है इसका यूज हम करेंगे. सो therefore now for all x where x belongs to capital R. स्टूडेंट्स अभी मैं जो यहाँ लिख रहा हूं ना वो सब पहले सब ध्यान से देखिए, फिर समझिए कि सही है या गलत. तो स्टूडेंट्स देख लें, x square which is greater equal to 0, is it right or wrong? स्टूडेंट्स सोचिए, आप शांति से सोचिए और मुझे बोलिए करेक्ट है या नहीं. बोलो x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? तो 0 के इक्वल आएगा और 0 से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा. सही है ना स्टूडेंट्स? इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x इज अ रियल नंबर एंड इफ वी square that real number or all real number, then we get the answer is a positive real number. How? Because of the square of negative number which gives us a positive number, and also the square of 0 which also give a 0. That means आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे ना रियल नंबर में से और उसका आप स्क्वायर करेंगे ना तो आपको आंसर 0 से ज्यादा ही मिलेगा, मतलब ग्रेटर ही मिलेगा. समझ में आ गया? 0 से ग्रेटर ही मिलेगा. और एक वैल्यू हमारे पास ऐसी भी है कि जो x स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर इक्वल 0 के इक्वल मिल रहा है. कौन सी वैल्यू है वो? खुद 0, इटसेल्फ 0. मतलब आप 0 का स्क्वायर करेंगे ना तो आंसर 0 आएगा. इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि लेस और इक्वल लिखा, क्योंकि एक आंसर आपको 0 भी मिल रहा है. बाकी सारे नंबर तो 0 से ज्यादा ही आएंगे, पर एक आंसर आपका 0 भी आएगा. समझ में आ गया? क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें, और एक नंबर हमारा 0 भी है इसलिए. ओके चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अभी स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ थोड़ा देख लीजिए, ध्यान दे. तो x स्क्वायर लिखता हूँ और ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखता हूँ. क्या करता हूँ मैं? +2, आई टेक +2 ऑन बोथ साइड्स. मैंने +2 दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ ऐड कर दिया. जो 2 है ऐड कर दिया. आई एड 2 ऑन बोथ द साइड. Now I get, or we get, what we get? X square plus 2 which is greater equal to 2. क्योंकि 2 plus 0 that means 20. 2 plus 0 that means 20, or not 20 that means 2. Okay students, चलो ये जो हमें यहाँ दिख रहा है ना x square plus 2, इसका आंसर मुझे कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ है? यहाँ, रिजल्ट नंबर 2. तो यहाँ मैं इसका रिप्लेस कर देता हूँ y से, y greater equal to 2. और इधर भी हम रीजन लिख सकते हैं. क्यों? तो के बाय 2. ओके चलो, इसका मतलब क्या होगा? तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो हमारा y है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? तो के 2 इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल और उससे ज्यादा. समझ में आया? ग्रेटर बोला है, 2 से ज्यादा आएगा. सपोज यहाँ मैं खड़ा हूं, वहां पे 2 है, इधर 0 1 ये 2 है और 2 से ज्यादा, इसका मतलब पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी y की वैल्यू जा रही है.
तो इसको हम इंटरवल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्लोज टू कॉमा इंफिनिटिव। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि क्लोज ऑफ यहाँ जो भी वैल्यू होगी ना स्टूडेंट्स, क्लोज ऑफ जो भी वैल्यू 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर, कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारे y के इक्वल है, मतलब y की वो एक वैल्यू डेफिनेटली आ रही है। ओके, सो जो भी क्लोज ऑफ जो भी नंबर होगा, ओके, विच इज द वैल्यू ऑफ y, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ y एंड द गो टू इंफिनिटिव, पॉजिटिव इंफिनिटिव। ओके, 2 से स्टार्ट होगा, 2 भी इंक्लूड होगा और 2 से कहां तक जाएगा? तो क्या हमारे इंफिनिटिव तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरवल में आंसर। अभी हम जो हमारे डेफिनेशन तो लिख रहे हैं वैसे हम फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं। देयरफॉर द range of f is equals to, by the definition of, we may write rf is equals to in a curly bracket y, where x comma y belongs to f, equals to y, where y greater equal to 2 comma y belongs to r। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो y belongs to close टू कॉमा इंफिनिटिव। तो ये हो गया आपका फाइनल और कंक्लूजन वाला आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सेम एज प्रीवियस, जो हमने प्रीवियस में किया सेम ऐसा ही है, पर कई जगह पे आपको थोड़ा वो क्या है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, पर स्मार्ट और हार्ड दोनों कंबाइन करेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल हो या कोई भी सम हो और कोई भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेटली आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देख आज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सबसे पहला सम वो जो टेबल वाला देखा वो आपको समझ में आ गया होगा, और उसके बाद हमने 2 सम ऐसे देखे जिसमें हमने रेंज ऑफ एफ फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जो भी सम्स देख रहे हैं, जो भी कोई भी सब्जेक्ट का आप वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, बराबर, थोड़ा ध्यान देके समझिए। कीप कॉन्सेंट्रेट, ओके, कीप फोकस on your content, keep focus on your definitions, keep focus on your what I teaching you। okay students, सब पे आप फोकस करके ध्यान देके समझिए, बराबर। उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर से उसको रिवाइंड करके देखिए वीडियोस। अभी सपोज क्लास में है, बराबर, क्लास में हो, अगर मैं क्लास में हूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप यू आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, if you have any doubt, then you ask me a face to face if we are in a class, but this is not a class, this is a online lectures। okay students, so if you can't understand or somewhere you have some doubts in some example or some topic, then you show that video rewind। okay students, तो वो आप वीडियो एक बार फिर से चला के देखिए तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे शब्दों पे खास ध्यान दें। वर्ड्स लिसन केयरफुली, माय वर्ड्स लिसन केयरफुली, देन यू अंडरस्टैंड इजीली स्टूडेंट्स। और जैसा मैंने अभी बोला, वर्क कैसा करना है, तो हार्ड तो करना ही है पर स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंस। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे कुछ ज्यादा बोलना भी चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि आप सब समझदार तो होंगे। ओके स्टूडेंट्स, so today I stop here। next time we will see this type of sums। okay, we have this type of another sums, this type of, then we will see in a next lecture। okay students, so stay home, stay safe, कहीं नहीं जाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी आपको मिल रहा है देखते रहिए, सीखते रहिए, और खास लिखते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका सब ये सब बेसिक है। इसका यूज आपको 12 में आने वाला है, बराबर। आप 11th में भले हैं पर आप 12 के लिए तैयार हो रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आप 12 प्रिपेयर हो रहे हैं, इसलिए आप 12 में ही है ऐसा ही समझ के आप स्टडी करिए। आप 12th स्टैंडर्ड में ही है ऐसा समझ के ही आप प्रिपरेशन करिए, स्टडी करिए, और जो भी
लिखना है सब कंटिन्यू प्रॉपरली लिखते रहिए, बराबर, सब काम लगेगा फ्यूचर में। स्टूडेंट्स बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आई थैंक टू यू बिकॉज ऑफ यू आर, आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के ये सब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं हमारा। थैंक यू सो मच। बस ऐसा ही बात है, कीप इट अप स्टूडेंट्स, थैंक यू।